So today we have Nancy ma'am with us. I mean, she is one of those teachers whom I have learnt a lot. It's not only that she is teaching the kids only, she is always teaching the parents as well, and she's very a genuine person, what I found. And she has been in this education field from past many years with so much of knowledge and with so much of experiences which she is having. I think it is very good that she's today with us, and we'll be talking, we'll be chatting, we'll be opening new perspectives of education and ourselves as mothers. And I think this whole chat is all about it. So we welcome you, Nancy ma'am, over here. Thank you so much. And I would really like your viewpoint on some of the which is happening everywhere, but we don't talk about it. So the first thing, जैसे छुट्टियां हो गई हैं, this is summer vacation, and I think every parent is filled up with so many assignments. Assignments which are theoretical also, which are practical also. So how far do you feel these assignments are good? Okay. Good for their growth or good for their parents' growth? I mean, how that assignment is going to fulfill? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल कि पहले कहा जाता था कि होमवर्क बच्चों को नहीं मिलता, उनकी मदर्स को मिलता है. बट नाउ देयर इज़ अ न्यू सिनेरियो आई हैव सीन इन द मार्केट कि होमवर्क बच्चों को भी नहीं मिलता, उनकी मदर्स को भी नहीं मिलता, बल्कि वो होमवर्क बाहर और किसी को बोल दिया जाता है कि आप असाइन कर दिया जाता है कि आप होमवर्क कर दीजिए या प्रोजेक्ट्स बना दीजिए एंड विल पे यू. सो दिस इज रियली रियली बैड. Whenever I see ad of people, and there are many teachers who approach me कि अगर आप किसी को जानते हो जो होमवर्क कर देते हो या प्रोजेक्ट्स बना देते हो, प्लीज़ लेट अस नो. एंड देयर आर मेनी टीचर्स हु अप्रोच मी एज वेल कि हम होमवर्क बनाते हैं, हम हॉलीडे होमवर्क करते हैं. सो दिस इज़ न्यू काइंड ऑफ अ बिजनेस मॉडल. So now it's not the homework of summer vacation for kids, but a new business model. Okay. In Kanpur. I don't know about other cities. And of course जहाँ हम बात कर रहे हैं बच्चों से कि reuse, reduce and many other things, वहीं पे simultaneously हम उनको ऐसी चीज़ें दे रही हैं जो आगे कभी यूज़ नहीं. They don't know how to button up their shirt. They don't know many basic things. So summer vacations and उसका homework should be more about learning the basic things of their day-to-day life, which the children are not able to do these days when the schools are going on. So you think the responsibility goes to less amount of assignment, or there should be a child-friendly assignment? It should be more of a child-friendly assignment rather than pressure. This is not only because the school has given the assignment and the schools are only wrong here. When the school gives the assignment, आई डोंट थिंक सो कि पेरेंट्स जुलाई में जाते हैं या टीचर्स को या किसी को अप्रोच करके बताते हैं कि दिस होमवर्क शुड हैव नॉट बीन गिवन. दे हैव नॉट मेंशन्ड इट. बिकॉज क्या हो रहा है ना, वो पहले से जो चला आ रहा है, दैट सेम सिस्टम इज गोइंग ऑन. एक सिस्टम था ऑफ गिविंग हैंड राइटिंग टू द चिल्ड्रन ड्यूरिंग द हॉलीडेज, वही चल रहा है. एंड देन द प्रोजेक्ट्स, maybe those projects are of use or of no use. I'm not saying all the homework is a trash, सारा का सारा homework खराब नहीं होता, but there are few points which I feel कि school को भी सोचने चाहिए. and school obviously तभी सोचेगा जब parent या बच्चा approach करेगा to the teacher कि मैम आपने ये जो homework दिया ये मुझे समझ में नहीं आया, आप क्या मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो. और पेरेंट्स स्कूल जाके बताए कि ये मेरा बच्चा नहीं कर पा रहा है, ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू माई चाइल्ड. और व्हाट वी आर डूइंग एज अ पेरेंट, हम भी क्या कर रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आउटसोर्स कर रहे हैं. ऐसे दिए, प्रोजेक्ट बनवाया, क्या मिला था क्या नहीं मिला था, वी डोंट केयर. एंड द चाइल्ड इज गेटिंग द ग्रेड फॉर द होमवर्क. दैट इज एंड आई थिंक द लूजर्स आर children only because they are not attached with any. I will correct. I think this statement, it's not only the children, the whole society is losing. We all are losing some or the other thing. We are talking about when environment, ethics. तो बच्चे किसके हैं? बच्चे हमारे हैं, सिर्फ स्कूल के नहीं हैं, हमारे हैं, आपके हैं. यही बड़े होके डॉक्टर्स बनेंगे, इंजीनियर्स बने होंगे और बहुत सारी जगहों पे जाएंगे, हमें रास्ते पे मिलेंगे. सो द वे दे आर बिहेविंग, द वे दे आर परफॉर्मिंग देयर थिंग्स will affect all of us.
सो इट्स नॉट ओनली कि बच्चे कुछ खो रहे हैं या पेरेंट्स कुछ खो रहे हैं, हमारी सोसाइटी, हम खुद खोते जा रहे हैं बच्चों के साथ. सो आई फील डेफिनेटली not only school but parents and the whole family should look into it. Why only the parents? पूरे family को बच्चों के साथ बैठना चाहिए. क्या हॉलीडे होमवर्क में मिला, क्या आउट ऑफ वेस्ट बच्चा बना रहा है, नहीं बना रहा है, क्या चीज़ें मिलनी चाहिए थी. बिकॉज nowadays ना स्कूल सिर्फ गलत नहीं है, क्योंकि हमने पेरेंट्स की तरह हमने फीडबैक देना भी तो बंद कर दिया है. एंड व्हेन इट कम्स टू फीडबैक, आई विल मेंशन no parent want to give any kind of other feedback. It's all lollipops. Yes, I was coming to this कि feedback के नाम पे like parents are very terrified कि हमारे बच्चों को टारगेट कर दिया जाएगा and we are not going to say openly क्या ही करना, जो सिस्टम चल रहा है चलते रहने देना चाहिए. Also same the schools are doing. अगर आप नहीं कुछ करना चाहते तो सिस्टम कैसे how will they get to know? And there is one common saying among the parents I can tell, कुछ भी कर लो, स्कूल सुनने वाला नहीं है. Yes, absolutely. This is there all, मतलब all the time I hear this from the parent. तुम कुछ भी कर लो, चले जाओ, जाओ जाके कंप्लेन कर दो, जाओ जाके ये कर दो, nothing is going to change. Consistent और consistent effort बनाने की बहुत Exactly. And schools are also, they want the feedback. आप बताओगे ही नहीं तो चीज़ें ठीक होंगी कैसे? So this is very important. I feel. So अगर हमें हॉलीडे होमवर्क को और क्रिएटिव और अच्छा और समथिंग एजुकेटिव बनाना है या उसमें कुछ चेंजेस लाने हैं, सो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. आई फील अभी हमारे पास टाइम है कि हम चीज़ें मार्क डाउन करें कि those fairy tales won't work anymore. दीजिए Cinderella, like 2 stories में they are only taking the names of पंचतंत्र पढ़ लो, either it's this पंचतंत्र and you go with the Cinderella और like your other I guess जिस एज को 3+ के साथ I'm dealing 3+ till class 12. I feel pre-primary का भी बच्चा आज के टाइम पे can make and spin their own story. It's just you have to give them a chance. So why not? Why do go for the Cinderella or Red Riding Hood? उनको चांस दीजिए. हाँ, हॉलीडे में they have the time. तो चांस दीजिए, अपनी कोई स्टोरी बना के लाइए, लिख के लाइए, बना के लाइए. Write a travel blog or something like that, which you felt, whatever you felt about your holidays. They can write a journal also. Something very creative. Very creative. And of course it should not be a pressure. जल्दी होमवर्क बिकॉज क्यों बाहर दिया जा रहा है? क्योंकि प्रेशर नहीं होना चाहिए होमवर्क का, है ना पेरेंट्स पे ना बच्चों पे होमवर्क. बिकॉज आप बिलीव नहीं करोगे, आई नो द किड्स जिन्होंने राइटिंग के लिए भी बाहर दिया हुआ है, कितने पेजेस ऑफ हैंड राइटिंग रीड करके दे दीजिएगा. आई डोंट नो कि स्कूल्स में वो चेक होते हैं कितने पेजेस कितने नहीं होते हैं. तो आई थिंक दिस इज ऑल गोइंग टू लैंडफिल्स. Yes. This is all going to, of course, like every time. So there is one thing also, beginning of the session they start to give that. My daughter asked me कि मम्मा ये जो रोल्स मिलता है कवर करने के लिए, बुक्स को कवर करने के लिए, and there is a like plastic thin sheet which is very transparent and you have to cover it with all the books and everything. She tells me, like today is World's Environment Day, and today only she asked me, somehow it just came out, that role, and then she asked me, Mama, ek taraf to we are celebrating this, and from school say I am getting this role. So like, I don't know what very good to like answer her. I just said, we will not use it. But somewhere you have highlighted this point that the whole society has to be like changed. Not only parents and not only individual families should change. Yes, we have to imbibe this thing. हमें अपने अंदर से imbibe करनी पड़ेगी. हमें सिर्फ हर चीज़ को like कमेंट एंड शेयर नहीं करना है. हमें तो अगर का बिल्कुल एकदम में the way we instead of giving only like, we give our heart as well. So I do not appreciate that thing, giving heart to so many people. So what are we teaching our kids? सबको तो दिल दे के बैठ गए हैं हम. So we need to understand कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, एंड प्रॉब्लम्स सिर्फ एक एंड से नहीं होती है. हमें बच्चों को सिखाना होगा. आप सिर्फ ब्लेम गेम नहीं खेल सकते हो. क्या हो रहा है, आई थिंक कहीं ना कहीं जो हम गलत कर रहे हैं इन द ओल्ड एजुकेशन सिस्टम, वी आर प्लेइंग द ब्लेम गेम. पेरेंट्स आर ब्लेमिंग टीचर्स आर ब्लेमिंग school is blaming management is blaming parents. So again we are playing just a blame game. और कोई नहीं मिलता है तो हम लोग बच्चे को बता रहे हैं हमारे टाइम पे ऐसा होता था, तुम लोगों के टाइम पे
कौन सा टाइम, कौन सी चीज़ें आई डू नॉट अंडरस्टैंड, वो सिर्फ वही कर रहे हैं जो वो हमें करता हुआ देख रहे हैं. We need to understand. So let's stop this blame game in the whole education system. Let's come together. चाहे वो हॉलीडे होमवर्क हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, ताकि हम अपने बच्चों को, अपने आने वाले कल को सेव कर सकें और अपलिफ्ट कर सकें. वेरी ट्रू मैम. आई एम लाइक एक और दिमाग में क्वेश्चन था. लाइक आई वाज आस्किंग माई सेल्फ दिस क्वेश्चन, like giving lollipops to the children every time. We want to make all the kids happy. सब में एक हार्मोनियस फीलिंग आनी चाहिए, किसी को ऊंचा नीचा नहीं लगना चाहिए. सबकी पर्सनालिटीज़ डिफरेंट है. किसी में अगर कुछ अच्छा है, मान लीजिए अगर कोई पढ़ाई में बहुत अच्छा है, कुछ प्ले में बहुत अच्छे होंगे जी. कुछ प्ले में अगर नहीं अच्छे हैं, दे माइट बी वेरी गुड इन सिंगिंग और डांसिंग. लाइक आई थिंक बहुत वैसा सा एक, फॉर एग्जाम्पल लाइक इफ़ आई टेक माई सेल्फ ऑल्सो, लाइक मेरा भी स्टूडेंट टाइम में कुछ बहुत अच्छा रहा होगा, which somewhere got erased with time and with the societal pressure I can say, कि सिर्फ पढ़ो. यही एक ऐसी चीज़ है जो तुमको बहुत ऊपर ले जाएगा. Do you think this kind of a thinking or this kind of a teaching to the next generation, is it right? I am like, मैं आपको बता नहीं सकती. Every day, because I'm a teacher, Yes, and a mother as well. Every day before sleeping, and because my mummy and my brother is also into teaching, हम लोगों का यही एक बहुत प्रॉब्लम रहता है. हम अगर कहें कि हम टीचिंग में कहीं पीछे रह गए ना, सो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, मैं आपको अपने क्लासेस का बता दूँ. इफ़ आई टेल द पेरेंट दिस इज़ द प्रॉब्लम विद द चिल्ड्रन, योर चाइल्ड, ये प्रॉब्लम है, आप उसको पॉइंट आउट कर दीजिए, you will get n number of excuses from the parent कि हम क्लास कंटिन्यू नहीं करा पाएंगे. Not very next day, maybe after a week or after a month. Yeah. So सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो क्या है, हम गलतियों को ना सुनना चाहते हैं, ना सुधारना चाहते हैं. हम जैसे हैं, हम सिर्फ अच्छा सुनना चाहते हैं. जो टीचर्स के साथ ना इंसाफ़ी हो रही है इन स्कूल्स एंड एवरीवेयर, वो ऐसे बन गए हैं क्योंकि उनको एक ऐसा सिस्टम में बना दिया गया है. आपको वो जैसे गांधी जी के 3 बंदर थे ना, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, है ना. सो आपको बुरा कुछ देखना ही नहीं है. हम टीचर्स को एक पूरी सोसाइटी ने ऐसा ही बना दिया. एंड द टीचर, द वन बेस्ट जो टीचर है आज के टाइम पे, इज़ दैट टीचर जो आपको कोई बुराई नहीं बता रही है, आपके बच्चे को अच्छे से खिला रही है, आपके बच्चे के साथ पूरा टाइम स्पेंड कर रही है, वो पिक्चर्स पोस्ट कर देगी आपके टीचर से. मतलब लाइक आई विल नॉट से कि पिक्चर्स पोस्ट करिए, देयर इज़ नो हार्म, बट येस, जो आपके बच्चे को हाथ भी नहीं लगा रही है, डांट भी नहीं रही है, योर चाइल्ड इज़ गोइंग टू द क्लास हैप्पीली. एंड अच्छे से एग्जाम्पल इसमें मैं एक चीज़ बोलूँगी, जैसे हम सब आजकल जिमिंग एंड ऑल फिटनेस, जब आप कहिए एग्जैक्टली कोई करेक्ट वे जगह पे जाते हो जहाँ ऑब्वियसली फिटनेस होती है, नॉट फॉर द सेक ऑफ फिटनेस, बट यू डू दी एक्सरसाइज, एक टाइम के बाद बॉडी में पेन स्टार्ट होता है ऑब्वियसली. एंड उस पर अगर आपने छोड़ दिया तो आप एक लेवल अप नहीं जा पाओगे, ऑब्वियसली, है ना. आप कभी फिट नहीं हो पाओगे. आप अपने आप को उससे भी आगे स्ट्रेच करते हो, राइट. I think humans evolved to take this kind of a pressure and pain. कंफर्ट जोन से है. आप आज के टाइम पे इफ़ यू ट्राई क्या किसी बच्चे को कि वो बच्चा ठीक है, उसको और अच्छा करना है, आप उसको उसके कंफर्ट जोन से हिलाइए. इट्स नॉट द चाइल्ड हु इज़ ब्लेमिंग फॉर द थिंग्स और हु इज़ क्रिएटिंग द सीन कि नहीं जाना. इट्स द पेरेंट बिहाइंड द चाइल्ड. नहीं जाना, नहीं अच्छी वाली मैम, एंड देन दादा दादी, द होल फैमिली गेट्स इन्वॉल्व. और चीज़ों में नहीं होते पर इसमें हो जाते हैं ज़रूर. अरे नहीं, अभी हम मैम से बात करते हैं, हम उनको फ़ोन करते हैं, हम समझाते हैं, बच्चे का मन नहीं है तो रहन दो ना, क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हो. सो और भी क्लासेस है, और भी चीज़ें हैं एंड ऑल दैट. सो ऑब्वियसली तो इससे क्या हो रहा है ना, व्हाट आई कैन फील, जैसे आप हो, देयर आर मैनी अदर पेरेंट्स जैसे जिनके साथ मुझे था, मेरे बच्चे पास एक बार बच्चे आए तो हमेशा के लिए एक फैमिली टर्म्स बन गए. अब आई फील लाइक बच्चे आ रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, बच्चे जा, टू बी वेरी वेरी ओपन, बिकॉज वो लिंक बन ही नहीं पाता. क्यों? क्योंकि आप अपना दिल से पूरा बच्चे के बारे में बता ही नहीं पाते हो. जहाँ टीचर को या डॉक्टर को अगर फिल्टर लगा दे पड़ जाए तो आप समझ सकते हो वेयर द सोसाइटी इज गोइंग. देन यू विल ब्लेम द टीचर, देन यू विल ब्लेम द डॉक्टर लेटर ऑन.
नॉट दैट मोमेंट ऑफ टाइम, अगर उन्होंने ऑब्वियसली सच कड़वा होता है और वो बच्चों की वो नहीं है, पेरेंट्स डोंट वांट टू लिसन दैट कड़वा वाला सच, वो सुनना ही नहीं चाहिए. I think everyone is going at a very बहुत fast paced life में. We are following Western culture more. We are not following. I am like, you know, I'm taking 5 days a week class या 4 days a week class. They want 1 day, 2 days. But like everybody wants Maggie. कि 1 day कर दीजिए मैम, right? कि 2 days कर दीजिए. And then one of the parent, you know, very old and very nice parent, she called me up and she said, अरे मैम आप 1 दिन कर दीजिए, बहुत अच्छा, बच्चे इंजॉय भी कर रहे थे, मज़ा भी आएगा, 2 दिन कर लीजिए. मतलब आई फील लाइक कि कोई मंदिर है कि बच्चों को घंटी बजा के जाना है. वी आर यू नो कुछ करने के लिए. अगर हम लोगों ने उस दिन बच्चों को, मैं बहुत बेसिक ऑफ स्टिचिंग सिखा रही थी, नीडल में थ्रेड ऑब्वियसली हमें 1 मिनट लगता बच्चे को डाल के देने में, बट वो उसका कॉन्सेंट्रेशन जो दिन बच्चों ने 1 दिन 2 दिन तीसरे दिन खुद डाला था, दैट हैप्पीनेस, दैट विन was like wow. वो सिर्फ उसकी जीत नहीं थी. नहीं also she मतलब she enjoyed it like gold. घर पे भी आके she was, and when we were eating, one of the child told me कि मैम my grandmother is saying Nancy मैम अब तुम लोग को टेलर भी बनाने लग गई है क्या? Seriously, yeah, these are the, you know, I can say कि ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है, any teacher or not only any teacher, any person but is trying to take the efforts. No, I mean these are few things which have which is forgot. And I will not say कि पेरेंट्स का अच्छा रिव्यू नहीं आया, वो भी आया, बट और ऑब्वियसली आई डोंट फील लाइक कि हर चीज़ को कैमरा पे ला के दिखाओ डालो, क्योंकि फिर तो हम कैमरा के ही लिए रह जाएंगे. हमारा क्लासरूम कम, वो एक वीडियो और फोटोग्राफी यू नो प्लेस ज़्यादा बन जाएगा. When your child speaks up more than you, that is a win situation for you. आपको तो ऑब्वियसली पीछे ही रहना है. एंड एक वही बात है ना कि हम लीडर्स तो बना ही नहीं रहे ना, हम तो फॉलोअर्स बना रहे हैं ना. लीडर्स क्रिएट करना टेक्स दैट करेज. ये फॉलोअर्स इज लाइक ठीक है, हम बोलते जा रहे हैं, जिस रास्ते पे चलते जाओ भैया, यही करते हैं. सही बात. एंड टू क्रिएट अ लीडर आपको बहुत एनर्जी और बहुत एफर्ट्स लगते हैं. बिल्कुल है. एक्चुअली हम अपने ड्रीम्स जो है ना, जो हमें नहीं मिला, वी आर थिंकिंग दिस थिंग. आई थिंक हर पेरेंट का थोड़ा ये है कि मेरी मदर ने या मेरे फादर ने उस टाइम पे शायद उनको नॉलेज नहीं थी, उन्होंने नहीं किया, तो हम ये करेंगे. बट एब्सोल्युटली दिस इज रॉन्ग. दिस बट आई डोंट थिंक सो. आज का पेरेंट इज डूइंग द थिंग्स बिकॉज ऑफ दिस. आई फील लाइक आवर पेरेंट्स हैव डन दीज थिंग्स फॉर अस, थिंकिंग ऑल दीज थिंग्स. जो हमारे today's generation is doing the thing for their kids because उसका बच्चा सीख रहा है, मेरा नहीं सीख पाया तो क्या होगा. उसके बच्चा कहीं यहाँ पहुँच गया है, मेरा तो फिर मैं you know when we will sit in the group. You changed my whole perspective in just one sentence because I was thinking कि maybe he was. ये हमारा generation, I think parents ने ये सोचा है. I don't know about other people, पर मुझे ऐसा लगता है जब I meet the parents today, so they keep on thinking कि ये उनकी ये सोच है ही नहीं, जो हमें नहीं मिला वो हमारे बच्चों को, जो दूसरे के बच्चे को मिल रहा है वो हमारे अपने बच्चे को भी दे दे, कहीं हमारा बच्चा पीछे ना जाए. यू नो पीछे छूटने दो. आई फील लाइक गो स्लो. बच्चों को खेलने दीजिए, इंजॉय करने दीजिए, डांट खाने दीजिए, मार भी खाने दीजिए. दवाई कड़वी होती है हर चीज़ जब बचपन में. ये नहीं कि ज़बरदस्ती आप बच्चे को लेके मारो, बट येस दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, क्योंकि जब वो बचपन से नहीं ये दवाइयाँ लेगा ना तो बड़े हो के बहुत प्रॉब्लम उनके लिए भी है, हमारे लिए भी है, और हम सबके लिए. एक्चुअली सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैं हमेशा इस बारे में बोलना चाहती थी. देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज टीचिंग किड्स, मतलब अकेडमिक्स में देखती थी. सो मुझे यही, मैं बच्चों को बहुत डांटती मारती सब करती थी, प्यार भी करती थी, बट ऑब्वियसली उसमें मार वाला होता है, वो हमेशा प्रायोरिटी रहता है. एंड देन वन ऑफ द यू नो जहाँ मैं जिस स्कूल में लेती थी, उनके प्रिंसिपल ने मुझे बुला के बोला कि मैम आपको पता है आजकल इस केस हो जाता है, FIR हो जाती है टीचर्स के खिलाफ अगर किसी पेरेंट ने आपके लिए शिकायत कर दी क्या. एंड देन आई सेड कि सर अगर बच्चा नहीं कर रहा है तो हम क्या करें. देन ही सेड अरे वो उनकी प्रॉब्लम है, करें ना करें. सो यू नो द मेंटालिटी, अगर हम एज एन एजुकेशनलिस्ट, एज एन मेंटर, हमारे पास बच्चों को क्यों भेजा जाता है, मेंटर की ज़रूरत क्या है.
आप अगर कोई भी पुराना आप अगर उठाइए, रामायण उठाइए, महाभारत, या हर चीज़ में मेंटर्स का डिस्क्रिप्शन है। राम जी के टीचर कौन थे, अर्जुन के टीचर कौन थे, and how much they have taken, मतलब like गुरु दक्षिणा है। Exactly. हम इंडिया में टीचर्स को, हम लोगों को इतनी बड़ी एक रिस्पेक्ट, एक वो वैल्यू दी गई है। सो हमारी सिर्फ ड्यूटी, ऑब्वियसली मनी मैटर्स, बिजनेस मैटर्स, एवरीथिंग इज वन थिंग, पर वो जो रिस्पेक्ट है ना, वो टीचर्स भी खोती जा रही हैं और बच्चे भी खोते जा रहे हैं। Because they are chilling with the teachers. आजकल become the friend of your child, पेरेंट्स के साथ भी, टीचर्स के साथ, जो आई डोंट थिंक सो, इट्स नॉट। बच्चे रिस्पेक्ट दें, इसके लिए बहुत, और वही बात है ना कि ये हम सबकी ड्यूटी है। कोई अकेले, ना स्कूल, ना टीचर्स, ना पेरेंट्स, ना मदर। मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगी, ना मदर। ये सिर्फ एक मदर की ड्यूटी नहीं है कि एक मिशन शुड बी टू क्रिएट गुड ह्यूमन्स, नॉट रोबोट्स। ये हमें अपनी माइंडसेट को बदलना पड़ेगा। हमें अच्छे इंसान चाहिए, तभी तो फिर सोसाइटी उस पर बिजनेस बनाने लगेगी ना। अगर रोबोट्स पे बिजनेस चल रहा है तो ऑब्वियसली मार्केटिंग होगी, वही बिकेगा। जैसे अभी हम लोगों की बात हो रही थी ऑफ कैमरा, आई थिंक वी वर टॉकिंग अबाउट दोज थिंग्स। यू वर टेलिंग कि कोई ब्लैक एंड वाइट कार्ड्स आने लगे हैं। यस, टू मच 1 ईयर से 6 ईयर से आपकी मेमोरी बहुत शार्प हो जाएगी। राइट, हम लोगों को तो ये था कि बादाम खा लो सोक्ड वाले, और वो भी उससे भी किसकी हुई है किसकी नहीं हुई है, वी डोंट नो। एक्चुअली ये बहुत फनी चीज़ है, लाइक बादाम खा लो एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग वी फॉरगेट टू soak it, right? So on this, और सबकी मेमोरी शार्प करके करना भी क्या है, I feel like. I mean, life is easy. Let's make it simple and go slow. We are making it very tedious for our kids. We are really are. And we are making it for ourselves also. And when ma'am, I talk about mother's guilt, you are a mother also. Even I am a mother. I mean, we are working as well with most of the time I have seen, चाहे बारिश हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कितनी भी धूप हो रही हो, but you are taking your, I mean, I have seen you from there. जब आपके आन को, I think वो 1.5 year old था, then you started, you had And kind of a courage. when like it was I think 1 or 2 months old, I started it online. हाँ, you started big. वो तो हम आपकी मजबूरी थी because COVID was there, Right. है ना, and we were recovering the second wave. अगर उस टाइम पे भी सब कुछ normal होता तो I think you would have started. So like how far do you think this mother guilt is there? Like I think ये होता है, मेरे अंदर भी है, बहुत है, but I think अब थोड़ा सा like I just actually मुझे ये वर्ड ही बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। जब पेरेंट्स, कोई भी पेरेंट कोई भी मदर आके बोलती है ना मदर गिल्ट, किस चीज़ का गिल्ट है actually मैं किस चीज़ का मैम guilt है? देखिए, And you know, I after every program, after every I think say कि जो challenges आते हैं as a teacher मेरे सामने, वो जब overcome हो जाते हैं, the first person whom I thank is Kian, is my son. And also I thank him, and I feel the kind of strength in him, and the same vibe gets transferred to me. वो जो उसकी आंखें बोलती है ना, आप करो मम्मा, हम आपके साथ हैं, है ना। सो इवन इफ आप किसी भी फील्ड में हो, आप घर पे हो, तो आपके बच्चे को अगर आपने ये सिखा दिया कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग। देन दैट pressure is not there, that guilt is not there, it converts into a kind of beautiful journey. Yeah. एक सुंदर सी जर्नी। मतलब I have seen, मेरे बच्चे को मेरे सब प्रोग्राम्स पता है, उसको पता है किस टाइम मम्मा को नहीं डिस्टर्ब करना। एंड द बेस्ट पार्ट इज जब वो स्कूल यहाँ आता है, एंड देन ही कॉल्स मी नैन्सी मैम, एंड सो आई फील दिस इज सो गुड, दिस इज सो ब्यूटिफुल। सो गिल्ट तो होना ही नहीं चाहिए, मतलब बीइंग यू इज गिल्ट। अगर आप कह रहे हो कि मदर गिल्ट होता है कुछ, तो आई फील कि मदर अगर कुछ भी अपने लिए करती है, मीन्स शी इज बीइंग हरसेल्फ, so then she should be guilty about it. And so this is the way ना, because mother guilt क्या ही होता है, ये होता है ना, सोसाइटी बोलती है कि आपने बच्चा छोड़ दिया। नहीं, अपने आप को मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी दी। आई थिंक मदर गैस का बी yourself हाँ is a guilt. if हाँ And so this is wrong. I wanted to like talk over this. Yes. लेकिन जब बच्चा आपका देखेगा ना कि मम्मी खुश है, वो भी खुश रहेगा, फैमिली भी खुश रहेगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो क्या है, गिल्ट एंड ऑल, दिस इज ऑल ओल्ड सेइंग्स। आई डोंट थिंक सो कि आज की मदर्स को किसी भी तरह का गिल्ट होना चाहिए, बट दे शुड फील प्राउड ईच एंड एवरी मोमेंट
कि that हम they are doing देखिए it. कि How हमारे beautifully they are बच्चे doing कितने it. अच्छे से हमारा साथ दे रहे हैं, उनके साथ को इंजॉय करना चाहिए, उनके साथ के लिए हमेशा वी शुड बी थैंकफुल. मतलब आई एम टेलिंग यू, आई वोंट से कि आई ओनली ओ इट टू कियान, बट येस ही इज़ वन ऑफ दैट स्ट्रेंथ ऑफ माइंड नाउ, कि जिसकी वजह से इज़ लाइक आप जाओ और हम आपके साथ हैं. दैट बेस्ट विशेस जो आपको मिलती है ना, एंड ऑब्वियसली वो वाइब टू कम अप फ्रॉम अ चाइल्ड इज़ वेरी डिफरेंट फीलिंग. True. आपकी मदर से, आपके स्पाउस से, आपके सिबलिंग से आना इज़ अ डिफरेंट थिंग. But coming from your Yes. child who is such a like who doesn't know how to communicate these feelings, when but it comes that expression expressions and everything, and it gets and communicated. also I think जितना स्पेशली मदर एक्सप्लोर करती है ना लाइफ को जिस तरीके से, द सेम वे द चाइल्ड डज विदाउट टीचिंग द चाइल्ड. मतलब आपको बैठना नहीं पड़ता. इफ लाइक आई एम गोइंग एंड मीटिंग पीपल, सो नाउ ही नोज हाउ टू इंटरेक्ट, you know, who is who, कौन क्या होता है, किसका क्या. So अगर I am going to the good places, he is also going to the good places. If I am meeting the good people, he is also meeting the good people. If I am doing something good event, something good is going on in my mind, so he is also part of it. So everything is very important. Yes. So I think there is no mother guilt. Guilt तो होना ही नहीं चाहिए, है ना. Every time we used to do it over the phone call. The first time we did it on the camera, Yes. and we are sharing it with all the parents, Yes. teachers, the Now, mothers. this is why I want. And I really want people to obviously correct us if we are wrong. I'm not Yes. saying I'm only right. Please correct us if we are wrong. I myself I'm trying to find out the answers of these questions. I will not say कि I have the answers. I keep on asking the principals, the teachers, कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है. And I have seen a kind of a hitch. लोग बोलना नहीं चाहते. मैम आज की डेट में कोई किसी से बात ही नहीं, मतलब एक होता है ना लेयर्ड बात करना जी, एक होता है अंडर लेयर. आप अपने मन की बात बोल रहे हो, सामने वाला उसको कैसे परसीव कर रहा है. लाइक इफ आई टॉक, हो सकता है आपकी बातों को बहुत सारे लोग ऐसी चीजें लें कि बिल्कुल नेगेटिवली लें, कि प्रैक्टिकली नहीं. आज की डेट में एग्जिस्ट ही नहीं. I will say कि no, then also we will learn. I will learn. Obviously I cannot be right. Ma'am, who am I? I'm not a big student. Yes, this kind of a student. Like every person is a student, whether it is a 60-year-old. We all are learners. Yes, we all are. Until unless the day we die, we all are learners. Of course, I will say कि बस हाँ, yes, a reminder for all the teachers. बहुत important है that we are teachers. We are not just teachers. We are teachers. हम लोग गुरु हैं. हम एक बच्चे की लाइफ को बना सकते हैं या फिर कुछ भी. यहाँ तो हमारे लिए बहुत एक बच्चे को एक टीचर का बहुत बड़ा सपोर्ट होता है. True, ma'am. एक करेक्ट गाइडेंस करेक्ट टाइम पे मिलना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Every time I pray to God, I just say just a simple thing. It's not a much big prayer, but very हाथ जोड़ के कभी भी. It is something like मेरे बच्चों को हर स्टेज पे एक अच्छा मेंटर गुरु मिलना चाहिए. दूसरा कंपनी बहुत अच्छी होनी चाहिए. And rest is fine. I'm okay if the child is coming on the 30th position also, 50th position also, because आज की डेट में पता है मैम पोजीशंस बड़ा मैटर करने लगे हैं. बच्चा 95% लेकर आ रहा है कि 20 ऐसे कि हमें मैटर नहीं करता, लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ता. पर नहीं, डीप इनसाइड वो बच्चा घर में मैम मम्मी वो जानती है, उसको फर्क रिफ्लेक्ट पड़ता होता है कि नहीं है, पड़ता. वो रिफ्लेक्ट होता है. मैं चाहे कितना भी ना बोलूँ ना, but my children know somewhere it has affected my mother, and it will be definitely getting transferred to other people also. लोगों की ड्यूटी एज अ टीचर एज अ पेरेंट, हम ये बैगेजेस बच्चों पे ना शिफ्ट करें और अपने ऊपर भी नहीं लें. इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. And mom, let me know, like आज कल की जो mothers हैं, they are like, I will not say every mother is a working mother, whether it's an office or a house, they all are working. How important is to give कि सिर्फ बच्चा जो है वो सिर्फ अभी 9 months तो बहुत सारा वो होता है कि भाई ये ले लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो. everyone is around you कि बेटा गर्भ संस्कार सुन लो, बेटा ये कर लो, ये मंत्र सुन लो, अभिमन्यु यहाँ पे था, and many more thing which comes up with like this. But after once the child is arrived, the whole like पूरा का पूरा एक ना सिनारियो शिफ्ट हो जाता है. बेबी हो क्या, अब तो मदर ही करे. इट्स द ओनली रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर द ओन सोल एंड रिस्पॉन्सिबल
मैं क्या करूँ, हम लोग भी तो ऐसे ही हुए थे। आई थिंक ये कभी भी सही नहीं था जी। और ये आज भी सही नहीं। नहीं, ऑफ कोर्स आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जब हम एक विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं ना, तो हमें उसमें विमेन एम्पावरमेंट के साथ मदर्स एम्पावरमेंट भी ऐड करना चाहिए। बिकॉज हम एक बात तो कह रहे हैं कि मम्मियाँ चांद पे चली गई या कुछ भी, हाँ। वो चली गई, उसके बच्चे पीछे क्या कर रहे हैं, who is looking after those children? वो भी Because for this ना, I'll tell you, I have done the research। जब मैंने क्लास स्टार्ट करने जा रही थी, तो मैंने कहा मैं उन मदर्स के बच्चों का देखती हूँ कि जिनकी मदर्स आर गोइंग आउट फॉर द वर्क। What about those kids? उनका कैसे डेवलपमेंट हो रहा है? So I just recall myself कि कौन कौन से बच्चे ऐसे मैं जानती थी कि मदर्स आर गोइंग आउट फॉर द वर्क, एंड देन आई फाउंड कि ये तो बच्चे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। So there is no harm of going out. Obviously आपको सब कहेंगे फैमिली में, तो obviously सब जगह, it's not only family, इतना छोटा बच्चा है छोड़ के मत जाओ and all that thing. So जब आप बात कर रहे हो आज टाइम चेंज हो गया है, आप विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हो, तो हमें कहीं ना कहीं फैमिलीज को ये चीज़ समझनी चाहिए दैट इट्स नॉट ओनली अ मदर्स जॉब। Thank you, Nancy ma'am, for spending your time with us and having an insight about the things which we are forgetting. Hope so. And it's a very open platform, I think. So if we, as Nancy ma'am also said, that we all are learning. So if you find that you should give something a kind of a feedback, do ask questions in comments and ask it openly. I mean, and I'll be very thankful to Nancy ma'am that she has spared so much of time with us. It is almost about we had a talk about now we have been talking and doing things. So from her busy schedule, she just took out time and spent it with us. So I'm very thankful to her.